Hello, how are you? I hope you all are doing well today. So, today we'll be taking a look at the biology syllabus that we've got for O levels. This is the syllabus that is followed in Pakistan. Alright, the code is 5090. So, obviously, there are multiple similarities between a lot of syllabuses, even for GCSEs and other syllabuses as well. So, obviously, the content is the same. For instance, cell obviously is going to be the same for no matter what the situation is. Whatever the syllabus is, cell to cell hota hai. Now, the first syllabus content point says, examine under microscope animal cell, plant cell from any suitable locally available material using an appropriate temporary staining technique such as methylene blue or iodine solution. तो बेसिकली स्लाइड प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं माइक्रोस्कोप पे स्टडी करने के लिए. वी आर गोइंग टू डू दैट लेटर. लेकिन अभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ड्रॉ डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल एग्जामिन्ड अबव. Identify on diagrams, photomicrographs or electron micrographs the ribosomes, mitochondria, nucleus, cytoplasm and cell membrane in an animal cell. Then we're supposed to identify ribosomes, mitochondria, chloroplast, nucleus, sap, vacuole, cytoplasm, cell membrane, cellulose cell wall in a plant cell. उसके बाद we'll come on to bacterial cell. लेकिन for now let's just work on the animal cell. Okay, so what is the difference between a plant cell and an animal cell? Let me just quickly just make this a little bigger. Okay, so what is the difference between an animal cell and a plant cell? Let me just draw a quick outline for both of them. So let's divide the page into two. Okay, over here I'm going to draw the animal cell. Now the animal cell is an irregular looking cell. It could be of any particular shape, but a plant cell has a very regular shape, okay, like the one shown. And this outline that I've drawn over here is basically the cell membrane. So what I've labeled in red is the cell membrane for the animal cell, and for the plant cell as well. Let me quickly label that over here just so there is no confusion. This over here is the animal cell and this is the plant cell. Now we're working through it. I'll also tell you a few tricks and tips so that you could score well in your exams. So this is plant cell. Alright, now this is the cell membrane for an animal cell as well and for a plant cell as well, the one that I've drawn using the color red. तो ये हम लिख लेते हैं cell membrane, okay, और ये plant cell की भी cell membrane है. अब let's select another color to draw certain more features. Okay, let's pick this one. Now let's draw a nucleus in both of them. So another feature that's common to both an animal cell and a plant cell is that they both have a nucleus. Now nucleus का क्या function होता है, उसका further structure कैसा दिखता है, we'll do all of that in detail in obviously the next video where we'll be studying the function of all of these organelles. This video is just based on the structure of animal cell and plant cell and their specific differences. So this is a nucleus. Both of them have a nucleus as well. Okay, moving on to the cytoplasm. Now all of the jelly-like material behind the cell, okay, जिसमें सारे organelles suspended है, is known as the cytoplasm. So all of the remaining area at the back, जिसमें ये सारे organelles है, जिसमें nucleus है, mitochondria है, ये जितना भी back का base है, that all is known as cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance which contains all of the organelles of a cell. So this is a cytoplasm for the animal cell and for the plant cell. Okay, now let's take a look at their specific features. Okay, these are features that were common to both of them. Now let's take a look at their specific features. So instead of labeling this now, we'll move on to their specific features. So cell membrane, nucleus and cytoplasm is common to both a plant cell and an animal cell. Okay, now what does a plant cell have that an animal cell does not have? The plant cell additionally has an outer layer which is referred to as the cell wall. Now a lot of students make this mistake. जब labeling आती है तो वो cell wall label करनी होती है, वो अंदर वाली label कर लेते हैं, बाहर वाली नहीं करते हैं.
प्लांट सेल में जो बाहर वाली लेयर है वो सेल वॉल है, अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो पर्पल से मार्क हुई हुई है ये है आपकी सेल वॉल, एंड ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और ये किसकी बनी हुई होती है ये भी हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स द मटीरियल बाय विच द सेल वॉल इज़ मेड इज़ डिफरेंट। तो प्लांट्स में स्पेसिफिकली जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। ये सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है प्लांट सेल में जो एनिमल्स में नहीं होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो एनिमल सेल्स में नहीं होता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनिमल सेल में वैक्यूल ही नहीं होता है, और वो जब डिफरेंसेस मेंशन करने होते हैं प्लांट सेल और एनिमल के, वो ये लिख कर आ जाते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, जो गलत बात है। प्लांट सेल में भी वैक्यूल है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल है, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल्स में देयर इज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे टेम्पररी वैक्यूल्स हैं। तो कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल होते हैं, ठीक है। लेट मी पिक दिस, ओके। सो दिस इज़ द वैक्यूल। अ वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल एज वेल एंड एन एनिमल सेल एज वेल। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के वैक्यूल का, कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, सो इट्स अ परमानेंट वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स हैं। ठीक है, ये दूसरा फीचर हो गया। याद रखें, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म दोनों में है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में है। अब हम प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस करें। पहला डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, सेल्यूलोज सेल वॉल है, जो एनिमल सेल में नहीं है। दूसरा, प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल है। तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम्स में ये मत लिख कर आइएगा डिफरेंसेस में कि प्लांट एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता। एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। ओके, मूविंग ऑन। और क्या फ़ीचर्स होते हैं? अनदर फीचर दैट्स कॉमन ओनली टू अ प्लांट सेल इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन एक और मसला है, हर किसी को लगता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हर प्लांट सेल में होता है, तो ये गलत बात है। प्लांट सेल, सारे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें सेल वॉल उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, सच एज़ द लीफ, द स्टेम। लेकिन जैसे रूट्स हैं, रूट्स अंडरग्राउंड में होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसका फंक्शन होता है टू ट्रैप सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल्स में भी सारे प्लांट सेल्स में नहीं होता है। तो अगर वो आपको दे देते हैं रूट हेयर सेल्स और उसमें कोई चीज़ लेबल करने को दे देते हैं, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो पहला डिफरेंस ये कि एन एनिमल सेल इज़ एन इरेगुलर लुकिंग सेल, अ प्लांट सेल इज़ अ रेगुलर लुकिंग सेल। A plant cell has a large central vacuole, whereas an animal cell has small temporary vacuoles. Then plants have a cell wall made of cellulose, they have a chloroplast, whereas animal cells do not have a cell wall and they do not have chloroplast in them. ये हो गए major differences दोनों में। अब कुछ और organelles होते हैं which are common to both of them. So let's take a look at that. कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होती है, या इन फैक्ट लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस ओवर हियर एंड लेट्स टेक अ लुक एट अदर थिंग्स दैट आर कॉमन। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल अगेन, और फिर हम देखते हैं और क्या चीज़ कॉमन होती है दोनों के अंदर। तो ये एनिमल सेल हो गया, ये हमारा प्लांट सेल हो गया। प्लांट सेल में मैं सेल वॉल भी बना देती हूँ ताकि डिफरेंस जो है वो प्रॉपर्ली विजिबल रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं थ्रू आउट द सेल। राइबोसोम्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं माइक्रोस्कोप पे, ठीक है, अनटिल अनलेस आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करें, वरना लाइट माइक्रोस्कोप पे राइबोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं। So these little structures within the animal cell and a plant cell are referred to as ribosomes. Okay, ribosomes की भी further category होती है। तो animals और plant cells में 80s ribosomes होते हैं, बैक्टीरिया में 70s ribosomes होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे ribosomes। ribosomes के अलावा एक मेजर ऑर्गेनल जो दोनों में प्रेजेंट होता है वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। हम फर्दर डिटेल्स माइटोकॉन्ड्रिया की देखेंगे, अभी तो मैं ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ जस्ट टू शो दैट अ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ प्रेजेंट विद इन एन एनिमल सेल एज वेल एंड विद इन अ प्लांट सेल एज वेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल विच प्रोवाइड्स द सेल विद एनर्जी, ठीक है। तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, और इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऑर्गेनल है जो रह गया है? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज, ये हो गए प्लांट के। और एनिमल के राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसके अलावा भी और ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और ये दोनों में होते हैं। तो ये भी मैं क्विकली ड्रॉ कर लेती हूँ। ऑब्वियसली ये हम तब पढ़ेंगे इसके फंक्शंस हम फर्दर पढ़ेंगे, तो फिर आई वोंट सेलेक्ट ग्रीन, लेट्स सेलेक्ट अनदर कलर। ओके, तो देयर समथिंग नोन एज गोल्गी एपरेटस, ठीक है, जो एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होते हैं। सो दिस ओवर हियर इज़ a Golgi apparatus। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ़, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये भी दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में हमें नज़र आते हैं। तो Golgi apparatus, अच्छा ये बता देती हूँ कि स्मूथ और रफ़ Golgi एपरेटस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए होते हैं, जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, और इनके ऑब्वियसली अपने खुद के अलग फंक्शंस होते हैं। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंड रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डिफरेंस है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए होते, रफ़ के ऊपर लगे होते हैं। तो इसके ऊपर क्योंकि हमने अभी ड्रॉ नहीं किए हैं राइबोसोम्स, तो इसको हम स्मूथ ER या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिडर कर लेते हैं। एंड इसके ऊपर हम छोटे छोटे डॉट्स बना देते हैं विच आर राइबोसोम्स। तो क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, इसके ऊपर भी राइबोसोम्स बना देते हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं तो इसको हम लेबल कर लेते हैं एज रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी अपने फंक्शंस हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बैक्टीरियल सेल को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में फिर हम ऑर्गेनल्स के स्पेसिफिक फंक्शंस एंड ऑर्गेनल्स को इनलार्ज करके देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम इनलार्ज करके देखेंगे कि इनके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होते हैं। अभी के लिए ये स्ट्रक्चर्स हैं।